Okay, now let's see top level management, middle level management, and lower level management. As I told you, there are 3 levels of management in an organization. Okay, first one is top level management. At the center, there is middle level management, and the lower, there is lower level management. The first of all, we'll see what is the meaning of top level management. Okay, the first point, see, it is the ultimate authority comprising of the board of directors. That means ultimate authority, that means whatever decision, final decisions will be taken by the top level management. And top level management में कौन से लोग होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, CEOs होते हैं. CEO stands for the chief executive officer. Then meaning of the middle level management. What is middle level management? It comprises of the senior executives and the heads of the department. That means middle level management is comprised of senior officers. That means कि after top level management उनके जो subordinates है, different department होते हैं. See, in our organization में financial department होता है, finance department होता है, marketing department होता है, HR department होता है. ये सारे departments के head होते हैं. Okay, ये सारे heads जो है उनकी position क्या होती है? Middle level management में. And last is a lower level management. It consists of the first line managers, the senior foreman, and the first line of the supervisors. Okay, so top level management जो है, उसके बाद middle level management है, और उसके बाद lower level management है. Okay. Second point is responsibility. Okay, now all the 3 levels of management, इनकी responsibilities क्या क्या है? Let's see the top level management की responsibility. They frame the policies and the responsible for the overall decision and the operation of the organization. See, organization की जो भी policies बनेंगी, क्या organization आगे क्या करेगा, organization whether the organization will go for product, whether the organization will go for the national market or the organization for the international business, और ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोडक्ट डाइवर्सिफाइड करेंगे. जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर डिसीजन है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन की मेजर पॉलिसीज है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर थिंग्स है, वो सारे के सारे इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट. Okay, now let's see the middle level management. They translate plans, policies, strategies into the specific goal. See, top level management क्या करता है? सिर्फ policies को frame करता है और उस पॉलिसी को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, किस तरह से उसको प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है, ये काम इट्स अ मिडिल लेवल मैनेजमेंट का है. एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. एंड द लोअर मैनेजमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं, जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्चुअली इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं. जो प्लानिंग करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट, वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उनको समझाता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और एक्चुअली उस प्लान को करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट. ओके, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ द वर्क. तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का दे स्पेंड मोर ऑफ द टाइम with the peer and the outsiders, top executives. Okay, तो वो लोग क्या करते हैं? वो लोग अपने लोग जो है उनके साथ बैठ के प्लान्स बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, उसमें वो कंपनी के फ्यूचर के लिए, कंपनी को किस तरह से एक्सपैंड करना है, वो सबके लिए जो है वो हमेशा मीटिंग्स करते हैं. तो उनका नेचर ऑफ वर्क यही है कि उनको प्लान करना है. नेचर ऑफ वर्क मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेट रिजल्ट्स एंड कीप द बिजनेस फाइनेंशियली साउंड. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज प्लान्स बनाता है, वो प्लान्स एंड पॉलिसीज को अच्छी तरह से वर्कआउट करना, ताकि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सिक्योर रहे. ये जो है काम किसका है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का. एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट दे आर फील्ड वर्क्स. दे स्पेंड टाइम विद द सबऑर्डिनेट सॉल्विंग द मार्क प्रॉब्लम्स. दैट मींस के जो लोअर लेवल है, अब इसमें ये क्या होता है? कुछ फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो फ्रंट ऑफिसर होते हैं जो लोगों के साथ डील करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कस्टमर के साथ डील करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पीपल्स के साथ डील करते हैं, पब्लिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं, एडवर्टाइजिंग्स करते हैं. ओके, तो ये सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट काम है. फोकस, दे आर पॉलिसी मेकर्स हु डिसाइड द फेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. उनका मेन फोकस क्या है? कि उनको पॉलिसीज बनाना है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, और वो कंपनी का जो है फेट, कंपनी की जो आगे डेस्टिनी है कि कंपनी आगे बढ़ेगी, कितना आगे जाएंगी, ये सारी चीजें किसके हाथ में है? टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में. मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या है? दे एक्ट एज ए लिंक बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट. सी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ऊपर कौन है? टॉप लेवल. उनके नीचे कौन है? लोअर लेवल. तो वो दे एक्ट एज ए लिंक, वो दोनों के बीच की लिंक है. एंड लास्ट, दे मेंटेन एंड डायरेक्ट द कांटेक्ट विद द एम्प्लॉय. और जो दोनों मैनेजमेंट होते हैं वो एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं. लास्ट
point is action. They introduce suitable remedial measures to cut down the deviation of the performance. कभी कभी पॉलिसीज बनती है और पॉलिसीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो लोग रेमेडियल मेजर्स देते हैं. जैसे रेमेडियल क्लासेस होती है, अगर किसी स्टूडेंट को कुछ नहीं समझ में आता है तो वो रेमेडियल क्लासेस ज्वाइन करता है या कोई और क्लासेस ज्वाइन करता है. सेम में यहाँ पे भी ऐसा होता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट इफ थिंग्स कि वॉट एवर द प्लान्स एंड द पॉलिसीज दे हैव फ्रेम वो अच्छी तरह से एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, तो वो लोग उसके अंदर कुछ और चीजें रेमेडियल मेजर्स इंट्रोड्यूस करते हैं. Middle level management, they are involved in the paperwork, meetings and completing the deadlines. और जो भी पेपर वर्क फॉर्मेलिटी है, गवर्नमेंट की सब फॉर्मेलिटी है, जितने भी ऑफिस में जाके जो मीटिंग्स करनी है, वो सारा काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है. और लास्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, दे अरेंज द टूल्स, जो भी टूल्स होता है, इक्विपमेंट्स होता है, मटेरियल होता है, और डिसिप्लिन मेंटेन करना है फैक्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस में, ऑफिस में, वो लोअर लेवल मैनेजमेंट करता है. ओके, सो ये दिस इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट, और इनके डिस्टिंग्विश पॉइंट्स है कि इनके क्या काम है. ओके, आई होप दिस वन इज क्लियर. स्टूडेंट प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, ma'am. Okay, so M's. Okay, M's में so first one is the manpower. What is manpower? What is manpower? Come on, explain me what is manpower. I just explain you. Manpower means the employee of the ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज रहेंगे ना, वो. yes, come on. Yes, मैम, जो भी बिजनेस हम रन कर रहे हैं उसको, उसमें जो एम्प्लॉय रहेंगे वो मैन पावर. Okay, manpower. That means I told you that the success and survival of the organization depend upon the employee and the customer. See, employee is one, जिनकी skills, जिनके efforts, जिनकी knowledge, जिनके experience को organization use करता है और वो अपने product बनाता है. After that, machine. Okay, machine is again very important for an organization. अगर machine होगी तो ही product जो है वो बनेंगे. Third one is material. Raw material है, that raw material should be converted into finished goods. और वो shape लेगा. Okay, for example, see अगर आप book बना रहे हो तो book का raw material, what will be the raw material for book? अगर आपको एक book बनानी है तो what will be the raw material for a book? पेपर्स होंगे, इंक होगा. ओके, तो ये सारी चीजें जो है आपको चाहिए. देन मेथड्स, कि किस तरह से वेरियस मेथड्स आप फॉलो करते हो. फॉर एग्जांपल, सी इफ यू वांट टू राइट द बुक, सबसे पहले यू नीड अ पेपर. इन दैट पेपर यू विल राइट, देन बुक बाइंड होती है. तो दिस आर द वेरियस मेथड follows. Then money is a very important thing. थी money capital को बोला गया है blood of a business, backbone of the business. Without money business survive नहीं कर सकता है. Okay, बिजनेस चलाने के लिए जो है पैसे चाहिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, बिजनेस को डे टू डे रन करने के लिए पैसे चाहिए. एंड लास्ट पॉइंट इज मार्केट. मार्केट इज अ प्लेस वेयर द बायर्स एंड सेलर्स मीट, एंड मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जहाँ पे हम लोग लोगों को कन्विंस करते हैं. ओके, विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजिंग, हम लोग अपने एडवर्टाइजिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, ताकि लोग आके हमारे प्रोडक्ट को परचेज करें. तो दिस आर द 6 M's of the management. Okay, now let's see the characteristics features of the management. The first characteristic is management is a process. Management is a process and not merely a body of individual. Those who perform this process are called the managers. That means it is a process. एक ये ongoing process है. मैंने पहले भी बोला कि business is not one time. See, iPhone जो है वो top position के ऊपर है. Okay, अगर आप देखोगे मार्केट में इस वक्त सबसे जो costly फोन है वो कौन सा आईफोन है. इसका मतलब ये है कि एक बार मार्केट में आईफोन पॉपुलर हो गया तो उसने अपना सेल बंद कर दिया. नहीं, उसने आईफोन 5 लॉन्च किया, देन आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8. दैट मींस एवरी ईयर जो है वो अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहा है. तो ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट जो है वो क्या है, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस. वो एक टाइम पे खत्म नहीं हो जाता है. और जो ये काम करते हैं उस इंडिविजुअल्स को बोलते हैं मैनेजर. The manager exercise the leadership by assuming the authority and direct others. Okay, the manager की responsibility है कि वो जो एक leader की तरह काम करे और अपने subordinate को explain करे. Planning, organizing, ये सारा काम जो है वो किसका है, manager का है. Okay, next point देखो, इस screen visible student, screen दिख रही है आप लोगों को? Management, Yes, ma'am. okay. Management is a social process. Now management क्या है, एक social process है. Management take place through the help of the people. See, management क्या है, manage करना है business को. और business हम लोग किसके लिए बनाते हैं? You are preparing the product. आप कोई एक product बना रहे हो तो for whom you are preparing the product? Product आप किसके लिए बनाते हो? कौन use करेगा उस product को? Who is going to use that product? Come on, tell me. कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोडक्ट को कौन यूज करेगा? कंज्यूमर यूज करेगा. तो कंज्यूमर इज अ ह्यूमन यूज करेगा. तो ह्यूमन बीइंग क्या है?
इंसान है, सोशल है, वी आर सोशल एनिमल, राइट? पढ़ा है ना आपने इकोनॉमिक्स में? यस। तो जो भी हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस। ओके, हम लोग सोशली डील करते हैं, हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। ओके, वी लिव इन द सोसाइटी। तो जो भी है मैनेजमेंट जो है वो कौन सा प्रोसेस है? इट्स अ सोशल प्रोसेस। थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट इज द एक्शन बेस्ड. ओके, management is always is for achieving the certain objectives in the terms of the sales profit. See, management क्या है? हमेशा एक्शन में रहना है. एक्शन का मतलब ये नहीं है कि मारधाड़ करनी है. एक्शन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट को हमेशा ये सोचना है कि उनका सेल कैसे इंक्रीज होगा, उनका प्रॉफिट कैसे इंक्रीज होगा. ओके, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट का मोटिव क्या है? सी, द एम ऑफ एवरी बिजनेस इज टू मेक द प्रॉफिट. प्रॉफिट कमाना मेन एम होता है बिजनेस का, प्लस गिविंग सर्विसेज टू द सोसाइटी. सोसाइटी को सर्विस भी देना है और साथ साथ हमको पैसे भी कमाना है. तो मैनेजमेंट को हमेशा कुछ भी एक्शन बेस्ड सोचना है कि किस तरह से हमारी ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट होगी. जो भी हमने सोचा था, जो भी हमने, और फॉर एग्जांपल हमने सोचा था कि फॉर द एंड ऑफ द ईयर हमारा प्रॉफिट इतना होगा, जो भी हमने सोचा था उतना परफॉर्मेंस हमारी ऑर्गेनाइजेशन करे. Management involves achieving result through the efforts of the others. See, management का definition says management is the art of getting thing done through people. Okay, management is the art of getting thing done through with the help of the other. तो हमको management क्या बोलता है कि management हर, जैसे मैंने बोला है कि management is not an individual approach. किसी एक इंसान का approach नहीं है. It is a group activity, team activity. Okay, टीम. फॉर एग्जांपल सी, अगर इंडिया क्रिकेट खेल रहा है तो इंडिया कितने क्रिकेटर्स होते हैं इंडियन टीम में? आप लोगों को बेटर मालूम होगा. बॉयज, यू कैन हेल्प मी इन दिस रिगार्ड. कितने 11 खेलते हैं. तो इज अ टीम एफर्ट, पूरा टीम मिलके खेलता है. यस. ओके, तो अगर इंडिया जीतता है तो इट्स अ टीम. प्लीज रिस्पॉन्स. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ही होता है. ऑर्गेनाइजेशन में भी जितने लोग हैं, इट्स अ टीम रिस्पॉन्स. टीम मिलके साथ में काम करती है एंड ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है, तो दैट क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम. तो सो सेम मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट कोई इंडिविजुअल एक्टिविटी नहीं है कि एक प्रमोटर है या फिर एक बिजनेसमैन है जिसने सारी चीजें कर लिया. नहीं, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट में टॉप लेवल है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में लोअर लेवल मैनेजमेंट है, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स है. मिडिल लेवल में बहुत सारे लोग हैं. ये सारे लोग मिलकर काम करते हैं, उसके बाद ही जो है ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होता है. मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल. व्हाट इज इंटेंजिबल? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म इंटेंजिबल? कम ऑन, इंटेंजिबल मतलब क्या? स्टूडेंट, कम ऑन. आई होप यू आर नॉट स्लीपिंग. मैम जिसको टच नहीं कर इंटेंजिबल जो दिखाई ना दे, हम टच, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फील नहीं कर सकते. ओके, ओके, वो तो मैनेजमेंट भी आपको, आप मैनेजमेंट को भी आप टच नहीं कर सकते, आप फील नहीं कर सकते. ओके, लेकिन मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट विजिबल नहीं होता है. सी, जब मैनेजर आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आप लोगों को नॉलेज दे रही हूँ. ओके, आई एम स्पीकिंग और आप लोग सुन रहे हो, आई एम इनकोडिंग एंड आप लोग डिकोड कर रहे हो. तो यहाँ पे टच एंड फील नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मिल रहा है. आपको क्या मिल रहा है? आपको नॉलेज मिल रही है. तो दिस इज इंटेंजिबल. सेम वे और मैनेजमेंट में भी ऐसा ही होता है कि मैनेजमेंट पीपल जो है, दे आर डूइंग द थिंग्स बट वो इंटेंजिबल है. मैनेजमेंट इज एडेड बट नॉट रिप्लेस बाय कंप्यूटर. एडेड का मतलब होता है हेल्प. ओके, तो मैनेजमेंट जो है, सम पीपल इज थिंकिंग कि कंप्यूटर, हम लोग कंप्यूटर लेके आ जाइए तो हम लोग ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस कर सकते हैं. नहीं, ह्यूमन बीइंग इज देयर. एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहिए ही. मैनेजर सी, कंप्यूटर जो है वो कमांड नहीं दे सकता है लोगों को. आपके हाथ में कंप्यूटर है, इस वक्त आप लोग लैपटॉप के सामने बैठे हैं, लेकिन लैपटॉप सिर्फ आपके कमांड को फॉलो करेगा. आप उसको शट डाउन कर दोगे तो वो बंद हो जाएगा, आप रिस्टार्ट करोगे तो जो भी वॉट एवर कमांड यू आर गिविंग, लैपटॉप आपकी कमांड को फॉलो करता है, कंप्यूटर आपकी कमांड को फॉलो करता है, लेकिन वो खुद से कमांड नहीं दे सकता. ओके, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन वो स्मार्ट है. ओके, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं है. तो मैनेजमेंट जो है इनकी हेल्प ले सकता है, लेकिन उनको पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकता है. सी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कर सकता है क्या? पूरे एम्प्लॉइज को निकाल दिया और कंप्यूटर फिट कर दिया? इट इज पॉसिबल? इट इज पॉसिबल स्टूडेंट? स्टूडेंट प्लीज स्पीक अप. No, because that computer operate करने के लिए भी you require a human being. Okay, next, see there are several points: 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay, so